Okay, so without wasting any time, we now started our left topic जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था. So वही स्टार्ट करते हैं. ठीक है. So हम लोग यहाँ पे थे आई गेस. यस, हम लोग यहाँ पे थे. And we are already talking about how we can create one table uh, using the SQLite database, right? Okay, then the next is upgrading database. So upgrading database is nothing about now we update the content, change the content in the existing database. Okay, so the next thing is upgrading database. So using the on upgrade method we can change the existing field, like as we have discussed the old version and new version. So this thing is also updating while we are changing the things simultaneously. Okay, so drop older table if existing. So इससे क्या होगा, अगर कोई है so वो मैं drop कर दूंगा and create table. ये क्या updation हो रहा है. ठीक है, so I am simply deleting this existing table and create new table. That's it. Okay, then the actual part of our coding, he there we can code add the new contact. Okay, new contact हम लोग add कर रहे हैं. So using this add contact method we can add new contact. Okay, so here we can simply add the new contact using this contact field जो हम लोग ने की है. So we are targeting here the database. Okay, and the after that on that structure जो ऊपर हम लोग ने किया है we are adding the simple value using this contact value constructor. ठीक है, so values dot put. So here we can put the name which is my contact name. हाँ, and values dot put here I can put the. अभी ये जो IDs है वो ऊपर हम लोग ने क्रिएट किया. ठीक है, we simply here जो हम लोग ने गेट किया था वो वहाँ पे हम लोग अभी एंटर कर सकते हैं, या फिर एंटर की हुई चीज हम लोग डेटाबेस में एक्सेस कर सकते हैं. दैट्स द ऑल काइंड ऑफ थिंग these three line shows. Okay, so the next is inserting row. So now suppose I am adding these two values, name and phone number, for one person, and I want to add the same values, same key pair for another person. So obviously वो table में मैं store कर रहा हूँ. So in the table scenario I need more rows to insert new data. So to achieve that we can use this db क्या बोलते हैं हम लोग उसे, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. ओके, सो यूजिंग दिस इंसर्ट मेथड वी कैन एक्सेस द कॉन्टैक्ट वैल्यू. हाँ, मीन्स यहाँ पे हम लोग एक्सेस मतलब यहाँ पे मैं एक पूरा रो क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट वैल्यू, नल वैल्यू और वैल्यूज इनपुट कर सकता हूँ. अभी कॉन्टैक्ट टेबल कॉन्टैक्ट्स मतलब जहाँ पे उसका नाम और फोन नंबर है. Otherwise, if the user is putting something on that newly inserted row, then the field data is like table contacts जो वो वहाँ पे fill करने वाला है. Otherwise, it is kind of null values. या फिर अगर मैंने सिर्फ values put की है, I am not committing anywhere anything else yet. So at that time, simply जो value enter की है वो values दिखने वाली है. That's it. Okay. And second argument is string containing null column hack. Obviously जो null हो रहा है वो बता रहा है, और वो सब होने के बाद मैं क्लोज कर दूंगा. मैन्युअली मीन्स दिस इज नॉट द नेचुरल डेथ ऑफ या फिर नेचुरल क्लोजर ऑफ one row in my database. I am closing manually this row using the dot close method. ठीक है. Okay, then the next is अभी ये कोड बोल रहा है टू गेट द सिंगल कॉन्टैक्ट. हाँ, अभी सिर्फ एक मतलब जिसने किसी ने एंटर किया है वैल्यू. सपोज आई एम एंटरिंग माय नेम, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जो कुछ भी रहेगी डिटेल्स वो मैंने एंटर कर दिया. ना आई वांट टू शो द रिजल्ट ऑफ माय एंटर्ड वैल्यू, क्या क्या मैंने एंटर किया. सो फॉर दैट दिस इज द कोड गेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. हाँ, अभी दिस से मैं टारगेट करूंगा और जो ये सारी चीजें मैंने एंटर की है ऊपर, की आईडी, की नेम, ये सारी चीजें टारगेट करके आई कैन एक्सेस दोज वैल्यूज. हाँ, and initially those values are null where I can put the key ID, key name, key phone number, key contact जो कुछ भी है वो. Okay, and if the cursor is not null means I am entering something, I am adding something या फिर the screen is displayed something to me, then
कर्सर डॉट मूव फर्स्ट, सो उससे क्या होगा, मैं टारगेट करूंगा कि मैं कुछ डिस्प्ले कर सकूं. ओके, मीन्स whenever the user adding his information simultaneously the cursor is going to update, the cursor is going to display the information which user already stored in his individual database. Got it? Okay. Then the next field is for go code to get all contacts in a list view. अभी जितने भी सारे मुझे मैंने एंटर किए, मतलब मैंने सपोज 100 नाम्स एंटर किए, 100 एंट्रीज की है, जहाँ पे 100 आईडीज है, 100 नाव असणार आणि 100 फोन नंबर असणार, ठीक है. एंड नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दोज entered data, those stored data. So to achieve that, अभी मैं इंडिविजुअल टारगेट नहीं करूंगा, एक को कॉल किया ID1 ID2, वो प्रोग्रामर की थिंग नहीं है. वी आर थिंकिंग इन द लॉजिकल वे एंड वी आर सिंपली टारगेटिंग द, मीन्स एक ही लाइन में पूरा कोड आना चाहिए, पूरे वैल्यूज आने चाहिए, ऐसे हम लोग लिखते हैं. सो टू अचीव दैट हम लोग क्या करते हैं, स्टार यूज करते हैं, ठीक है. स्टार मतलब जो सारी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज में कॉल कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, ठीक है. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वो है टेबल की कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट है वो, एंड आई एम सिंपली डिस्प्लेइंग दैट वैल्यूज. हाँ, अभी यहाँ पे उन लोग ने एक लूप ऐड किया है, लूपिंग थ्रू ऑल रोज एंड एडिंग टू द लिस्ट. सो यहाँ पे एक लूप ऐड किया है कि इफ कर्सर डॉट मूव फर्स्ट, सो मतलब मुझे वो सिंक्रो एज पर द सिंक्रोनाइजेशन माई डेटा इज गोइंग टू बी अरेंज. ऐसी मेरी अगर इंस्पिरेशन है, सो अगर मुझे ऐसी एस्पायरेशन है, सो आई कैन कॉल दिस इफ मेथड इफ मूव डॉट फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट हुई है, हाँ, गेट स्ट्रिंग 1 मतलब 0 1 2 अप टू 3 4 अप टू n, वैसे वो ऐड होते जाने वाले, एंड वही सेम कॉन्टैक्ट लिस्ट में डिस्प्ले कर रहा हूँ. सो जो जीरो पे रहेगा वो जीरो पे जो आईडी रहेगी, फर्स्ट आईडी, वो डिस्प्ले होने वाली है. उसके बाद 1 2 वैसे जितने रहेंगे आईडीज वो साइमल्टेनियसली डिस्प्ले होने वाली है. दैट्स इट. क्लियर? Okay, then the next is code to update the single contact. Now suppose I want to change my name, and my name is present at the 7th ID, and my phone number is like 7507338178. Now I want to change that phone number into 8796300259. Suppose अगर ऐसे मेरा problem statement है, to do that I am writing this code. Okay, so simply I am targeting the values, and after targeting the values I am calling, आई एम सेंडिंग द कॉल्ड या फिर रिक्वेस्ट टू डेटाबेस दैट आई वांट टू चेंज दिस की नेम एंड फोन नंबर वैल्यू. ओके, एंड आफ्टर दैट acceptance of that request, you are able to change the table contacts as your key id, जो कुछ भी रहेगी उससे आप लोग चेंज कर सकते हैं. और वो अपडेटेड स्ट्रिंग फिर यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है. अभी वो जो ऑलरेडी डेटा था पहले वाला वो चेंज हो गया, अपडेट हो गया, एंड नाउ आई एम visible to see this kind of data on my screen. उसके बाद deleting single contact. Okay, so now I want to delete the single contact. पहले मैंने क्या किया, अपडेट किया सिर्फ कॉन्टैक्ट, अभी मुझे पूरा कॉन्टैक्ट डिलीट ही करना है. सो सिंपल है, सिंपल यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट, मैं गेट आईडी करके मैं उसे टारगेट करूंगा, और जो है मेरा वो डेटा मैं डिलीट कर सकता हूँ. ओके, यूजिंग दिस डिलीट मेथड. उसके बाद है गेटिंग कॉन्टैक्ट्स काउंट, मीन्स हाउ मेनी एंट्रीज आई हैव डन येट. अगर ये मुझे रिजल्ट चाहिए, सो उसके लिए भी सेम मैं करूंगा, टारगेट सबको, मतलब स्टार फ्रॉम ऑल, मतलब उससे क्या होगा, जितने भी डेटा मैंने स्टोर किए वो मैं काउंट कर सकता, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे. एंड आफ्टर दैट दिस डॉट गेट रीडेबल डेटाबेस, मीन्स दोज आर द एक्टिव लिंक्स, दोज आर द एक्टिव एंट्रीज are gonna count by using this method, and I can print that count using this method. okay, और उसके बाद मैं क्लोज करने वाला हूँ. ओके, क्लियर? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट लॉजिकल वैसे मैंने एक लॉजिक आपको बता दिया कि कैसे लॉजिकल फ्लो में वो डेटा स्टोर होने वाला है, और हम लोग ये फंक्शनलिटी एक्सेस कर सकते हैं. ओके, और ये फाइल हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि ये सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ एंटर कर रहा हूँ, जो नाम है उसका वो सब एंटर कर रहा हूँ. सो यहाँ पे देखो, यू कैन सी द आउटपुट एज, यहाँ पे देखो कुठे गेला बघा, ID1 नेम उसने दिया रवि, उसका फोन नंबर, हाँ, 2 श्रीनिवास फोन नंबर. ओके, ऐसे मैंने ये 4 स्टोर किए, ठीक है. सो नाउ यू हैव टू, मतलब वो डेटा आपको चाहिए ना,
वो डेटा ऑब्वियसली सिर्फ डेटाबेस में रह के मतलब नहीं है, वो मुझे एक्सेल फाइल में, वर्ड फाइल में वो चाहिए मुझे डेटा। सो हाउ टू व्यू द डेटा स्टोर्ड इन एसक्यूएल लाइट इन एंड्रॉइड स्टूडियो। सो यहाँ पे उन लोग ने प्रोसीजर दी है, फाइल मैनेजर में जाना है, उसके बाद डेटा डायरेक्टरी, ओके, इनसाइड डेटा डायरेक्टरी ये फॉलो करो कि ये सब ही चीज़ें हैं। उसके बाद ब्राउजर डेटा में आपको ये कॉन्टेक्ट्स मिलने वाला है, ये जो विंडो है वो अपेयर होने वाली है, एंड हियर यू कैन सी योर एंट्रीज जो यूजर ने एंटर की है। और ये डेटा मतलब बिग डेटा, अभी बहुत मेटा डेटा जो कॉन्सेप्ट है या फिर बिग डेटा कॉन्सेप्ट है, डेटा अबाउट डेटा, मतलब आपका आधार कार्ड का नंबर, आपके आधार कार्ड के नंबर या फिर फोन डिटेल्स पे भी बहुत लोग बहुत सारा बिजनेस कर रहे हैं, ओके, क्योंकि दिस इज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। सो ये अगर मुझे मिल रहा है आपको, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिजनेस कैसे हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हो रही है, आपका डेटा कैसे सिक्योर वे से स्टोर हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनसिक्योर वे से स्टोर हो रहा है। हाँ, सो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड हम लोग ने अब तक बनाया था, फ्रंट एंड में सिर्फ हम लोग को ये स्क्रीन दिख रही है जहाँ पे मैं मुझे बटन दिख रहा है, वहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ, लॉग इन कर सकता हूँ, बट दिस इज द थिंग। हाँ, योर एंटर डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन देयर, जैसे कि अभी फेसबुक का भी इशू हुआ था, ये फेसबुक प्राइवेसी कुछ नहीं मेंटेन कर रही है लोगों की, आपको पता होगा वो, ठीक है। सो ये सारी चीजें वहां पे आ रही है, क्योंकि जो हम लोग एंटर कर रहे हैं, जो हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जो कि हमें एज ए पेटीएम सेम दिखाएगा, मतलब वो डमी पेज रहेगा इंस्टेड ऑफ पेटीएम। सो इससे सिक्योरिटी या फिर रियल टाइम वर्ल्ड जो कुछ भी है वो सारी चीजें ये डेटाबेस से मैनेज हो रही, क्योंकि आपका डेटा वहां पे स्टोर है, ठीक है। सो आई होप you have get the idea of what is SQLite database and how we can implement this SQLite database in our Android application. Okay, so अपने 5 चैप्टर हो गए, and now there is one more unit left, which is security and application deployment in Android. So ये security application क्या है, SMS टेलीफोनी वगैरह जो चीज़ें हैं 20 मार्क्स का चैप्टर, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।